Okay, students, now let's start with exercise 3.5. Now, in this exercise, we have to use the method of cross multiplication to find the solutions of linear equations. Okay, so let's start with question number 1. Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution or infinite many solutions? पहले बेटा हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर इक्वेशन जो है उनका सॉल्यूशन कैसा है. सो योर फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 3y minus 3 equal to 0. So it's better you shift 3 to that side. This will become plus 3. ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. So this will become 3x minus 9y is equal to 2. So these are the two equations. Now बोला गया है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है then we have to use the method of cross multiplication to find the solution. So पहले हम चेक करेंगे solution. So here from 1 and 2 पहले देखेंगे what is a1. a1 क्या होता है? It is the coefficient of x of first equation. ये 1 आ गया. b1 is minus 3 and c1 is 3. Then a2 is 3, b2 is minus 9 and c2 is 2. So students, let us check what type of solution we have. So here, so therefore, what is a1 by a2? 1 by 3. What is b1 by b2? minus 3 by minus 9. कितना आ गया? ये भी 1 by 3 आ गया. And what is c1 by c2? ये 3 by 2 आ गया. अब इसमें since a1 by a2 is equal to b1 by b2 है, दोनों सेम है, but not equal to c1 by c2. So what type of solution is this? In this case, the equations are having no solutions. So therefore, the given equations have no solution. तो बेटा क्या बोला गया था? अगर सॉल्यूशन है, if the equation having solution, then we have to find out. अब सॉल्यूशन नहीं है तो फाइंड नहीं करेंगे. Now अब हम करते हैं सेकंड पार्ट. So it is what? 2x plus y equal to 5. So already स्टैंडर्ड फॉर्म में है. Here constant is on that side. इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन. And the second equation is 3x plus 2y equals to 8. So this is your second equation. Now again, first we find the values of a1 b1 c1 a2 b2 c2. So from equation first and second, a1, remember one thing, a1 is the coefficient of x of first equation, b1 coefficient of y 1, c1 is 5, a2 is 3, b2 is 2 and c2 is 8. Now students, यहाँ पर since a1 by a2 क्या आ गया हमारा? 2 by 3 and b1 by b2 क्या आ गया? 1 by 2. अब ये दोनों सेम नहीं है तो हमें c1 by c2 को निकालने की जरूरत ही नहीं है. So since a1 by a2 is not equal to b1 by b2. And students, हमें मालूम है जब a1 by a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं होगा तो मीन्स so thus the given equations have unique solution. तो बच्चों को पता है जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमने इसको फाइंड करना है. सो लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन. सो अब इसको
बढ़ाते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं बेटा? अब देखिए मेथड, वी हैव टू यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसे क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले ध्यान रखना, यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो व्हाट वी गेट, सो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो याद रखना बेटा, इसमें वी स्टार्ट फ्रॉम द वेरिएबल्स। यहां पर वेरिएबल क्या एक्स है, राइट, एक्स वाई, एंड if this constant is on the other side of equal to, we write -1 here. ये बड़ा फॉर्मूला क्या है हमारा, ठीक है। देन वी स्टार्ट फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्या होता है? b1 होता है, राइट, b1 c1 a2 b2 मीन्स पहले ये कोफिशिएंट आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, और फिर वही जहां से हमने शुरू किया था। देन b2 c2, b1 c1 a1 और b1 था, देन b2 c2 a2 और b2, ठीक है। देखिए बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको क्या करते हैं, वी राइट द कोएफिशिएंट ऑफ दिस b1 c1 a1 एंड b1, देन b2 c2 a2 एंड b2। तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हमारा ये एंड हो गया। अब हम इसको वैल्यूज को पुट करके then we'll do the cross multiplication. Let's see. So what we have, x, b1 क्या है हमारा? 1, y it is 1, then it is 5, it is 2, again it is 1, then here it is 2, it is 8, then again 3 and 2. Now students do the cross multiplication. Okay, अब बेटा ये जो हमारी वैल्यू आई किसकी आएगी? ये x अपॉन, अब क्या करेंगे हम इसमें? मल्टीप्लाई 1 एंड 8, 1 इंटू 8 माइनस आएगा फॉर्मूला का, देन 2 इंटू 5। सो दिस इज द वे यू शुड मल्टीप्लाई द टर्म्स। वी हैव टू स्टार्ट कहां से? फ्रॉम हेयर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, देन वी टेक द वैल्यू ऑफ y, then 5 into 3 minus 8 into 2, then minus 1, फिर 4 खत्म किया, 2 पे खत्म किया, now again start from 2, so 2 into 2 minus 3 into 1. Okay students, so now solve करिए, क्या आ जाएगा? 8 into 1 8, 5 2s are 10, 5 into 3 15, 8 into 16, then minus 1, 2 into 2 4 minus 3. सो बेटा इस तरह से अब हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा? ध्यान देखिए, 8 minus 10 is minus 2, 15 minus 16 is minus 1 and 4 minus 3 is 1. तो अब हमारी इसमें x और y की वैल्यू निकली नहीं, तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? वन वी इक्वेट दिस विद दिस and then with y minus 1, फिर हम इसको इक्वेट करेंगे variables with constant term. So this means, so how do we solve this? So we have to equate them one by one. So what you get? Look here, x upon minus 2, पहले हमने इसको इससे इक्वेट किया, then we equate y upon minus 1 with minus 1 upon 1. So students क्या आ गया? minus 2 into minus 1 is 2, so value of x comes to be 2. Then minus 1 into minus 1, 1 upon 1, क्या हो गया? 1 ही आ गया. So in this way students we have the values. So therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of given equation. Now students, the third part, first of all we have to check what type of solution these linear equations have. If they are having unique solution, then only we have to find them by the method of cross multiplication. So let's see. So here a1 means the coefficient of
x of first equation is 3, b1 is -5 and c1 is 20. Okay, but this is the first equation, this is first, this is second. Now from second equation, a2 is 6, the coefficient of x, b2 is -10 and c2 is 40. Okay, so now we have to find their ratios. Since a1 by a2 is 3/6, जो क्या आ गया 1/2, b1 by b2 is -5 by -10, which is again 1/2, and c1 by c2 is equal to 20 by 40. This is again 1/2. Now here, therefore, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. So here the ratios of a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 all are same. So therefore, thus the given pair of linear equations have, कैसे सोल्यूशन होंगे बेटा बताइए? यहां पर होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. ओके, तो क्योंकि अब हम आगे करेंगे, हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे बिकॉज इट इज गिवन दैट इफ दे आर हैविंग यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड. सो जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इसलिए हम इनको फाइंड नहीं करेंगे. ओके, सो now the fourth part. So fourth part is x minus 3y, x minus 3y minus 7 equal to 0. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिकॉज हमें कांस्टेंट टर्म को we have to move it to other side of equal to. So this will become x minus 3y equal to 7. This is our first equation, and the second equation is 3x minus 3y minus 15 equal to 0. So here again, when we shift this minus 15 to other side, it will become plus 15. So therefore, our equation becomes 3x minus 3y is equal to 15. This is second part equation. अब हम ratios निकालेंगे. अब ratios के लिए पहले हमको पता होना चाहिए what are their coefficients. Now here a1 is what? The coefficient of x in first equation, that is what? It is 1. b1 is -3 and c1 is 7. a2 3, b2 -3 and c2 15. अब we find their ratios. So since a1 by a2 is what? 1/3, b1 by b2 is क्या आ गया? 1 आ गया. अब इनकी रेशियो सेम नहीं आए तो हमको वैसे अगर हम ये नहीं भी निकालते तब भी इट्स ओके, क्योंकि जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2 हमारा आ गया है, मतलब the equations have unique solutions. So therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2. Thus the equations have unique solution. And I told you students, अब हमें क्या करना है? We have to use the method of cross multiplication. So उसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए. सबसे पहले जो भी वेरिएबल्स हैं, इसमें वेरिएबल्स क्या है? x है, दूसरा क्या है? y है, एंड थर्ड वी राइट -1 ऑफ आवर ओन. वो हम खुद से लिखेंगे. -1 कब लिखना है? जब एक कांस्टेंट टर्म को हम रखते हैं इस तरफ. ठीक है. अब नाउ राइट देयर कोएफिशिएंट्स. सो वी हैव टू स्टार्ट the coefficient of y.
y से शुरू करेंगे, y का क्वेश्चन क्या है, v1 है, सो वी राइट v1, आगे क्या है c1, फिर लिखेंगे a1 एंड b1. ये दिस इज द बेसिक वे टू राइट द these coefficients. Then we start from b2, c2, a2, b2. Now what we do, now we do the cross multiply, means इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और b2 को c1 से, देन c1 को a2 से, c2 को a1 से, a1 को b2 से और a2 को b1 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करके लेट्स सी व्हाट वी गेट. सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, b1 क्या है आपका -3, सो वी राइट -3, देन 7, देन 1 एंड अगेन -3. अब यहां पर फिर -3 आ गया, देन 15, देन 3 एंड -3. अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो क्या आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 3, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -3 इंटू 15, और ये जो माइनस आएगा ये आएगा फॉर्मूला का माइनस, देन -3 इंटू 7. I hope you understand. Then y 7 into 3 minus 15 into 1, then -1, 1 into -3, 1 into -3 minus 3 into -3. बस अब इनको सॉल्व करेंगे and we get the solution. So 3 into 15 -45, -3 into 7, 7 21, we have -21. याद रखना बच्चों, ये जो माइनस है ये माइनस फॉर्मूला का है. अब 7 3 21 -15, -3 into -1 is -3, minus plus 9, minus plus 3 is a 9. So what do you have? Minus plus 45 plus 22. So what we have? We have minus, because ये minus 45 है, ये plus 21 है. So when you subtract it, you will get, क्या आ जाएगा हमारा 24. ये माइनस में आएगा. Then y, ये 21 था, ये 15 था. So what is 21 minus 15? It is 6. Then 9 minus 3 is again 6. So what we do? Now we have to find the value of x and y. तो बेटा इसमें क्या करेंगे हम, एक रेशियो ये लेंगे, दूसरी लेंगे कांस्टेंट जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ये दो ले लेंगे तो इसमें x और y फिर आ जाएगा. So this means is equal to -1/6 and y upon 6 is equal to -1/6. So this means students -24 into -1 क्या होगा, 24 होगा, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. 24 into -1 24, 6 4s are 24, ये आ गया x. एंड यहां देखो 6 into -1 -6 upon 6 is what, -1. So this means you have the solutions as, so therefore x is equal to 4 and y is equal to -1 is the solution of given equations. Question number second, first part, for which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions? अब यहां पर हमको ये फाइंड नहीं करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, हमें दिया हुआ है कि दे आर हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. सो अब हमें दिया हुआ क्या है, 2x plus 3y equal to 7. This is our first equation, and the second equation is a minus b times x plus a plus b times y is equal to 3a plus b minus 2. This is our second equation.
अब हमें क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट द इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें पता है जब इनफाइनाइट होता है तो क्या होता है, रेशियोस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होगा एंड इज इक्वल टू c1 by c2. सो लेट्स सी नाउ हियर what is a1? a1 is 2, b1 is 3 and c1 is 7. Then a2 is a minus b, b2 is a plus b and c2 is 3a plus b minus 2. Now since the given equations have infinite many solutions, हमें दिया हुआ है कि these equations have infinite many solutions, तो मतलब क्या होगा, therefore a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 upon c2. now अब हम यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे, a1 क्या है इसमें 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. अब स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें को a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं तो मीन्स हमको दो इक्वेशन चाहिए। अब आप इनमें से बेटा किन्हीं दो को इक्वेट कर लीजिए। सो फर्स्ट टेक दिस टू, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2 upon a minus b is equal to 3 upon a plus b हो जाएगा। एंड वैसे ही ये भी इसके इक्वल है, तो मर्जी है चाहे आप इन दो को इक्वेट करके लो और एक इसको इसको कर लो या इसको इसको कर लो, आपको दो इक्वेशन तो चाहिए। तो क्या आ जाएगा कि 3 upon a plus b is equal to 7 upon 3a plus b minus 2. Now by cross multiplication, so 2 times a plus b is equal to क्या होगा 3 times a minus b, और यहां पर क्या हो जाएगा देखिए 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई 2a minus 3a plus 2b plus 3b equal to 0। ठीक है बच्चों, देखो दिस माइनस दिस, ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया माइनस a प्लस 5b equal to 0। दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, इसको थर्ड मान लीजिए। नाउ इक्वेट दिस टू, ठीक है। ऑल्सो 3 upon a plus b equal to 7 upon 3a plus b minus 2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। सो क्या आएगा 3 times 3a plus b minus 2, 7 times a plus b। so what we have, now we have to just open the bracket। so क्या आएगा 3 to 3 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b। so shift these to this side, what we have 9a minus 7a, 3b minus 7b, 6 को मान ले जाइए because constant term को हम रखेंगे on the other side। so what we have twice of a, 3b minus this is minus 4b is equal to 6। so 2 कॉमन ले लीजिए, a minus 2b is equal to 6। so therefore a minus 2b is equal to 3। this is our fourth equation now। क्योंकि अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी नहीं है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये a और b की फॉर्म में आ गई। अब बच्चों, अब हम चाहें तो इसको एलिमिनेशन से कर लो, चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लो, चाहे इसको बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ है कि इसको किस मेथड से करना है। तो लेट अस यूज द सेम मेथड, ठीक है। सो फ्रॉम थर्ड, दैट इज दिस इक्वेशन, एंड फोर्थ, लेट अस यूज द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो बाय क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन. सो व्हाट आई टोल्ड यू कि जो होते हैं वेरिएबल्स उसको लिखते हैं पहले हम. यहाँ ए है, वी राइट ए बी एंड -1. देखो बेटा, जब इक्वेशन एक्स में थी हम लिखते थे एक्स वाई -1, यहाँ लिखेंगे हम ए बी -1. और अब यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ द बी का, जो फर्स्ट क्वेश्चन का है वो क्या है 5 है. सो वी राइट यहाँ 5 लिख लो. देन 0 -1 एंड 5. उस तरह से व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ बी हियर, इट इज -2 देन 3 देन 1 एंड -2. बेटा मैं आपको ये मेथड करा रहा हूं, लेकिन इनमें अगर आप इनको एलिमिनेशंस या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो. फिलहाल जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई एम यूजिंग दिस मेथड. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्या आएगा बेटा, 5 3 15 माइनस 0 आ गया, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. 0 into 1 is 0, माइनस फॉर्मूला का आ गया. 3 into -1 is again -3, -1 -2 into -1 2 -5. सिंपल, दिस into this 2 माइनस फॉर्मूला का आ गया. 1 into 5 5. Now solve it. We get a upon 15 b upon 3 and -1 upon -3. माइनस कट गया बेटा. अब हमको a और b की वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेट दिस विद दिस. a by 15 is equal to 1/3 and b by 3 is equal to 1/3. सो इस तरह से क्या हो जाएगा बेटा कि जब हम इसको इक्वेट करेंगे क्या आएगा, a is equal to 15/3, वो क्या हो गया 5, एंड b by 3, तो मतलब 3 into 1 is 3, we have 3 upon 3 that is 1. So therefore a 5 आ गया and b is equal to 1. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह कोई और मेथड लगाएं तो क्या होगा. तो मैं आपको दूसरा मेथड बता देता हूं कि अगर हम इसको यूज करते हैं, लेट वी यूज द मेथड ऑफ एलिमिनेशन. ओके, आंसर इज राइट. नाउ हम सेम इक्वेशंस को एलिमिनेशन से करते हैं, ठीक है. सो दिस इज जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन. ओके, अब देखिए यहां पर कोफिशिएंट क्या है, a का -1 है, यहां पर +1 है. आई टोल्ड यू कि जब कोफिशिएंट सेम हो बट साइंस ऑपोजिट हो तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. तो जस्ट कर लो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ. अब ऐड करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या दिया है, -a + 5b = 0, a - 2b = 3. आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, यू आर फ्री फॉर एनी मेथड, क्योंकि आपको यहां पर लिखा नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है. अब क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं देन देयर इज नो चेंज ऑफ साइंस, तो -a + a 0 हो गया, 5b एंड -2b कितना होता है 3b हो गया, 0 + 3 क्या होगा 3. अब इस तरह से क्या आएगा, b = 1 आ गया. अंडरस्टैंड. अब ये b = 1 चाहे फोर्थ में पुट करो थर्ड में पुट करो. सो पुटिंग b = 1 इन थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, -a + 5 into b, तो 5 into 1 = क्या आ गया हमारा 0. सो -a = -5. तो व्हाट इज a = 5 आ गया. तो स्टूडेंट्स आंसर वही आया जो पहले आया था. सो इट मींस इस तरह से वी विल गेट a = 5. So therefore a = 5 and b = 1. I hope you understand. आपको अगर नहीं बोला है कि कौन सा मेथड यूज करना है, then you are free to use any method. Understand? So let us take the second part of this equation, this question. So second part में आपको क्या बोला गया है, that you have to for which of the value of k, अब हमको k की वैल्यू निकालनी है such that the given pair of linear equations have no solution. Okay, so second part, equation is 3x plus y = 1. This is your first equation, and 2
k minus 1 times x, k minus 1 times y is equal to 2k plus 1. This is your second equation. अब बेटा इनमें हमें क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ये जो k दिया हुआ है, इफ द इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस. अब नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी? सो पहले देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट इज a1? a1 is 3, b1 is 1 and c1 is again 1. a2 is 2k minus 1, b2 is k minus 1 and c2 is 2k. This is the constant term which is 2k plus 1. अब हमें क्या दिया गया है कि these equations have no solution since the given equations have no solution. तो क्या कब होता है वो? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हो. So put the values. This is 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1. So अब लेट्स वी यूज द वैल्यू. पहले हम ये दो ले लेते हैं. इट मीन्स 3 अपॉन 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 by cross multiplication. 3 times k minus 1 is equal to 1 times 2k minus 1. ओके, सो इसको हम इन दो को लिया. अब चाहो तो इन दो को भी ले सकते थे अब. ठीक है, सो व्हाट यू हैव, 3k minus 3 is equal to 2k minus 1. So shift the values of k to other side. So what you have, 3k minus 2k minus 3 become plus 3, 3 minus 1. So you have k is equal to 2. तो let us check कि जब 2 होगा तो क्या होगा. देखो बेटा, अगर हम 2 पुट करेंगे यहाँ, 2 to the 4, 4 minus 1 is 3, 3 upon 3 is 1. फिर पुट किया, 2 minus 1 is 1, 1 upon 1 is 1, दोनों सेम आ गए. If you put 2 here, 2 to the 4, 4 plus 1 is 5. So it means, therefore, for k is equal to 2, the given equations have which solution? No solution. याद रखना, no solution की condition क्या होती है? That a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Understand, student?